Karan, first of all, a warm congratulations, Big Boss की जर्नी के लिए. एंड ये जो पूरी जर्नी थी, सबसे पहले तो सर्वाइव किया इतने महीना फिजिकली, इमोशनली, उसके लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन. टॉप 3 में गए, उसके लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन. अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये जर्नी कैसी रही आपके लिए? मतलब जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा हो गया? एनीथिंग विच यू वांट टू से? एक्चुअली हाँ, क्योंकि सोचा तो बहुत कुछ अलग ही था. मैं बहुत ही चिल जोन में था कि ठीक है यार, जाएंगे, विल स्पेंड सम टाइम इनसाइड एंड विल कम आउट प्रोबेबली इन अ कपल ऑफ वीक्स, थोड़े वीक्स के बाद. ऐसा नहीं सोचा था. और मेरा ये था कि यार, आई डोंट थिंक कि मैं रियलिटी शो मटेरियल हूँ, क्योंकि आई एम वेरी रिलैक्स्ड इन लाइफ. ये जो फालतू के लड़ते रहते हैं, जो जस्ट दिखने के लिए, वो नहीं कर सकता हूँ. ना ही मेरा दिमाग चलता है ऐसे किसी को काटने में या किसी को धोखा देने में. तो मी एंड माई फ्रेंड्स थॉट कि भैया, आई विल नॉट लास्ट more than a few weeks, because obviously मेरा कर्ज कटेगा. तो that didn't happen, and in fact the complete opposite happened. I actually played the game the way I wanted to play the game. I started I think वो जो आप जब जिस माहौल में आपको डाला जाता है, आप उसमें आप सरवाइव करने की कोशिश करते हो. और मेरा सिर्फ सरवाइव करने का एटीट्यूड नहीं होता था, मेरा टॉप पे रहने का एटीट्यूड है लाइफ में. तो आई थिंक ऑटोमेटिकली मैंने अपने आप को ढाल लिया उसमें. And I just did what I actually felt. I didn't do anything different. I had no clue, to be honest. I was just surviving, and things just didn't happen. So, but whatever the kind of response, the kind of love, the kind of I term it as kindness. जितनी kindness मुझे मिली है country में, it's just overwhelming, and I think that's where I've won that. Yeah. Right. But Karan, were there any moments now that you recollect which happened with you, and now that you think back, you are surprised by yourself कि कैसे आपने face किया, with dignity, and आपने बस उस moments को face कर लिया? So do you recollect those moments? Of course. I mean, if you've seen the show, it was very evident कि मेरे जो narratives create किए जा रहे थे, और जिस तरह से मुझे बोला जा रहा था, वो ऐसा कुछ था नहीं. बार हम सोच रहे थे कि शायद ऐसा दिख रहा होगा और इसीलिए है. How much they've demotivated me throughout the show, how much they've tried to pull me down, and so we didn't know outside, right? Then in the middle somewhere I realized कि यार, मैं जो कर रहा हूँ वो I'm hoping and praying कि शायद audience को मेरा perspective भी दिख रहा होगा. मैं क्यों ये कर रहा हूँ, मैं किसी को प्रोटेक्ट करता हूँ उसको तो मैं टॉक्सिक बन जाता हूँ. मैं अपने लिए खेलता हूँ तो मैं सेल्फिश बन जाता हूँ. फिर मैं दूसरों के लिए खेलता हूँ तो मैं अपनी गेम नहीं खेल रहा हूँ. I mean, I to be very honest, I don't know. I mean, it's all it's all out there. So. Right. Okay, Karan, जैसे आपने कहा बहुत सारे narratives आपके बारे में बन गए. एक बहुत ही जो evident narrative था, ये था जैसे आपने खुद ने कहा, you being termed as toxic, whether it was being a boyfriend या फिर जो डोनल थी, जो खुद एक contestant थी, उन्होंने भी आपको toxic term किया. There were few celebrities also. So ये जो टर्म आप पे बार बार गया, कहीं ना कहीं क्या इसने मोरल आपका डाउन किया, एंड अब आप इस तरह से how do you tackle those things? Because it's a very strong word. The thing is that यार, ये जो लोग मुझे टॉक्सिक बोलते फिरते हैं, have they looked at themselves? कौन सी तुम्हारे ऊपर किताबें लिखी जा रही है रिलेशनशिप्स के ऊपर? Just because you are somebody and you think you can tweet and create these things, I would suggest all of those people to first look at themselves. Compare yourself with me and then speak. आप कोई मूर्तें नहीं हो यहाँ पर, ठीक है? It's very easy to point fingers at other people. मेरी इंटेंशन क्या थी और मेरे शो में क्या किया है, ये पूरी दुनिया को मालूम है. The entire country knows about it. So I don't need a few celebrities, so-called, then I have the entire country's support. So I mean, the answer is pretty out there. Right. And Karan, my question to Verma, like not taking any specific name from my side, but what we have seen, especially in all the Big Boss season, जो ये बार भी हुआ, celebrities जब किसी अपने favorite को support करते हैं,
they go out of the way when it comes to criticizing other contestant. Okay, now जब fans ये करते हैं, we of course we give a BOD कि चलो fans है, but when celebrities ऐसा करते हैं, जो खुद जानते हैं कि social media पे ऐसे लिखना कितना ज्यादा toxic होता है, उस पूरे सिनारियो में आप क्या कहना चाहते हैं? Do you think celebrities should be careful with their statements? No, I don't see. See, the point is कि सबसे बड़े वहां पर सलमान भाई थे, and I don't think कि उन्होंने कभी कोई favoritism दिखाई है. He was always he was the only source for us, because हम पूरा हफ्ता पागलों की तरह एक दूसरे के साथ होते थे, और वीकेंड पे हमें सलमान भाई मिलते थे और वो बताते थे कि करण तुमने यहाँ पर सही किया है मैं बोलूंगा, और यहाँ पर तुमने गलत किया मैं बोलूंगा. लेकिन उसका जो नैरेटिव क्रिएट करके बाहर दिखाया जाता था, that was a problem. जो सेलिब्रिटीज शो पे भी आए हमारे को, जब भी वीकेंड पे आते थे, आई डोंट थिंक उसमें से किसी ने भी कोई फेवरेटिज्म की. अब बाहर जो सेलिब्रिटीज हैं जो कि आप जो ट्वीट कर रहे हैं वो उनका नजरिया है, एंड टू बी ऑनेस्ट, yes, they need to be careful, but at the same time अगर उनका एक point of view है, they want to put it, they should put it. But the problem is that the celebrities are because of the audiences. आज अगर मैं करण कुंद्रा हूँ तो मैं अपनी ऑडियंस की वजह से हूँ, तो इतनी इंपॉर्टेंस मत दो मुझे. So it is as simple as that. मेरी औकात मेरी ऑडियंस बनाती है, मेरा घर मेरी ऑडियंस की वजह से चलता है. It is the other way round. Please, these celebrities need to understand that you are because of your fans, not the other way around. So the fans also need to understand, the audiences also need to understand that we are because of them. So stop giving us so much importance. It's very clear. Right. एंड करण, अगर आपकी गेम के बारे में बात करें, एक बहुत ही करण नीति ये जो वर्ड है बहुत फेमस हुआ था. मैंने जितना बिग बॉस देखा है, आई वुड ऑल्सो से कि आपके फाइट्स हुए या जो भी हुआ, यू हैव ऑलवेज ट्राइड कि आप सिचुएशन को बहुत मेच्योरली डील करें. फिर वो सिचुएशन सही थी या गलत थी, बट आपने हमेशा ट्राई किया. बहुत लोगों ने, जैसे आपने भी सुना होगा, जो आए उन्होंने कहा कि करण नीति जो आपका गेम था वो पहले 2 वीक में बहुत देखा, बाद में पता नहीं कहाँ चला गया. My question to you is कि मे बी आपका गेम हमेशा से चालू था, बट मे बी इन अ डिफरेंट मैनर और लोग उसे पहचान नहीं पाए. What is the exact thing which you want to say on this? See, people are used to a certain type on Big Boss. कि यहाँ पर लोग आते हैं और वो लड़ते हैं और वो मुद्दे बनाते हैं और वो दिखते हैं, क्योंकि probably that's what works. और दूसरे शोज पे भी होता है. I've done reality shows before. The fact is that I came in and I chose not to do that. I chose to use my brain, for God's sake. I chose to play the way I am. मैं भैं करके कैमरा में दिखना नहीं चाहता हूँ. Please, I don't need that, clearly. अगर मैं, हाँ ठीक है, तो जब टाइम होता है लोगों को इकट्ठा करने का, तो मैंने वो किया था पहले 2 हफ्ते. ठीक है, जब टाइम होता है अपने लिए खेलने का, दिमाग से खेलने का, तो हर चीज अगर मैं जाके कैमरा में नहीं सुनूं, मैंने ना एक्चुअली ये सोचा है कि मैं ऐसे करूंगा तो ये होगा. भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मैं करने वाला हूँ ये सब. मेरे बहुत क्लियर थे उमर, मैं, तेजस्वी, एंड एक पॉइंट तक निशांत. आई न्यू, और निशांत अपनी गेम खेल रहा है, ही वाज ऑलरेडी 6 हफ्ते करके आया था, तो वो ऑलरेडी वहां पर था. मुझे खुद को और अपने फ्रेंड्स को आगे लेके जाना था, एंड तक पहुंचना था, और वो मैं कर रहा था. ठीक है, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, हम अपनी गेम टास्क्स कर रहे थे, हम अपनी प्लानिंग कर रहे थे. हमने किसी को डाउन नहीं किया है, हमने किसी को बैकस्टैब नहीं किया है, हमने कोई वहां पे जाके अलायंसेस बना के दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं की है. टेल मी once where me, Umar and Tejasvi probably have played a dirty game. Not even once. किसी को धोखा दिया, मेरा नाम बदल देना, किसी के अगेंस्ट कुछ स्ट्रेटेजी बनाई, हमारा नाम बदल देना. पार्ट ऑफ द गेम, अच्छी गेम, जो कि मतलब बंदा खड़े होके बोल सकता है ठोक के कि हाँ मैंने ये किया है. ठीक है, अब अगर वो, क्योंकि अब लोग यूज्ड टू नहीं है ना, उनको तो वही भय दिखा है इतने सीजन से, या जो भी जैसा भी है, तो वो उनके हिसाब से है. बट आई एम अ डिफरेंट पर्सन, एंड द मेकर्स न्यू दैट आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन. तो पर वो मैंने बोलना बंद कर दिया है कि, और मैं क्योंकि आई डोंट हैव टू बी like a leader and say, listen, this is happening, this is what we do, and it's now okay, this is what I am going to do. It started looking like that. पर ऐसा होता तो मैं फिनाले में तक कैसे पहुंचा?
जी, जी, जी। ओके, सो करण डेफिनिटली बहुत कुछ आपने फेस किया है, बुरी चीज़ें, एग्रेशन बहुत कुछ फेस किया, बट बहुत कुछ कमाया भी आपने, लोगों का प्यार प्यार मिला आपको, आपको वहाँ पे दोस्ती मिली। तो दोस्ती से पहले तो शुरुआत करना चाहेंगे। उमर आप और आपकी आई बिलीव एक ऐसी बॉन्डिंग है जो घर में थी और अब तक आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। आई बिलीव आपके और तेजस्वी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मुझे हमेशा उमर की लगी है। एंड उसपे कहना चाहेंगे कि पहले तो यही है, पीछे खड़ी सुन लिया ना Exactly. उसने। But it's a very beautiful friendship. What I believe is that. हाँ, ओके, सो मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि जब स्टार्ट हुआ तो सबने ऑफ कोर्स आप पे वापस से एक्यूजेशन लगाए कि आप यूज कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हुए जब जहां लगा कि अब इंडिफरेंसेस होगा और शायद ये दोस्ती कम हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उमर नहीं वाज द बहुत फर्स्ट कोशिश पर्सन की। जिसने ये जी 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 इनफैक्ट उमर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने सोशल मीडिया पे लिखा दैट यू वर द डिजर्विंग वन, बट आपको ट्रॉफी इसलिए नहीं मिली क्योंकि आप उससे ज्यादा कुछ डिजर्व करते थे। एंड इनफैक्ट उमर की फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है, उनके डैड ने भी कहा था अंकल कि ऑल्सो, करण वाज द डिजर्विंग वन। सो कुछ अगर उमर और अपने फ्रेंडशिप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उनके बॉन्ड के बारे यार सी द थिंग इज कि आई नेवर न्यू कि उमर कैसा है, एंड में। उमर डिडंट नो कि मैं कैसा हूँ। बट द हम्म फैक्ट इज कि हम दोनों ही बहुत ही क्लियर कट लोग हैं। हम दोनों ही हम्म वी आर वेरी सिमिलर। हालांकि हमारी अपब्रिंगिंग्स अलग अलग हैं, हमारे कल्चर्स अलग अलग हैं, लेकिन हमारे जी एथिक्स, हमारे प्रिंसिपल्स और हमारा जो हम्म तरीका है जिंदगी जीने का, खुल के और मुंह पे हम्म और किसी के साथ बुरा ना करने का, और एक दूसरे हम्म के लिए खड़े रहने का और हिम्मत दिखाने का कि वी आर हियर फॉर ईच अदर एंड वी डोंट नीड। तो इट वाज जस्ट एन अमालगमेशन ऑफ टू वेरी सिमिलर people coming from the same ethics. मैं शांत हूँ और वो अलग है, so there were it हम्म was a balance, और वो वर्क हम्म किया हमारे लिए। ऐसा नहीं कि हमने गलतियां नहीं की, हमने बहुत गलतियां की। हम्म बोथ ऑफ अस वर हम्म एक्सट्रीमली रियल। हम जो फील करते थे हम करते थे। हम कभी अगर बैठे होते थे कि यार उमर पता नहीं यार, मुझे लगता है अगले हफ्ते हम दोनों को निकाल देंगे, तो वो फियर हम्म रियल था, you know and he हम्म didn't know what that I'm going to be like this. I didn't know he's going to be like this, but this was how can I say, meant to be. So anyway, so yeah, so I know कि वो बाहर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी उमर को। I remember once वो रश्मि को छोड़ के बिरले खेल रहा था, and so that bond and unspoken things को भी किसी एक दूसरे से कभी कुछ मांगा नहीं, एक्सपेक्ट किया, बट लड़े नहीं कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया या ऐसा क्यों किया। झगड़े, आर्गुमेंट्स हुई। जी कितना कोशिश किया, कितनी कोशिश की उमर और मेरे को लड़वाने की, कितनी कोशिश की जी उन्होंने। बट आई थिंक certain things are just certain things are bigger than what they can plan, and that was our friendship. जितनी मर्जी you can use your conniving methods for obviously entertainment. I'm not blaming anybody here. शो में हम्म हमारे जो कंटेस्टेंट्स थे, उन्होंने भी बहुत तोड़ने की कोशिश की, एंड हम्म मेकर्स आल्सो सॉर्ट ऑफ वांटेड टू टेस्ट कि तुम्हारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है हम्म बेटा, बहुत। And we sort of proved our bond. Me and Umar and me and Tejasvi, we proved that we are strong, we are real. और जितनी मर्जी मुश्किलें डालो, और ये पता है ऐसे टास्क आता जी था ना, और मैं था कि यार मुझे पता है ये जान पूछ के ऐसा कर रहे हैं because they want to test us, and this is where the audience will also see, and audience saw राइट everything. जी जी। एंड अब तो दुनिया को ये भी पता चला कि यूपी वाला वेरी गुड डांसर्स, जो एक आपने वीडियो डाला है, किसका आइडिया था बेसिकली वैसा वीडियो डालने का? आइडिया एक्चुअली राजीव का था, we have to give it to him. अच्छा बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया उसने। ओके। तो दोस्ती के बाद प्यार के बारे में बात करते हैं। आपको ऑफ कोर्स तेजस्वी भी मिली, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बना, बट ये रिश्ता आसान नहीं था। मे बी आपके लिए आसान होगा, बट वापस लोगों ने उस पर टारगेट किया, फेक कहा गया, टॉक्सिक कहा गया, इनसिक्योर कहा गया। आज अगर आप बता पाते कि आपका रिलेशनशिप एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कैसा है, तो क्या बोलना चाहेंगे? देखो, इट वाज नॉट इजी फॉर अस आल्सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म आप जिस माहौल में हो वहां पे अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। हाँ इट्स अ क्रेजी एटमॉस्फेयर, एवरीबडी इज देयर फॉर अ विन। उस हम्म एवरीबडी इज देयर और सब पे शक हो रहा है, और कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। यू डोंट नो हु टू हाँ ट्रस्ट, हु नॉट। दिस इज अ रिस्क दैट हम्म यू टेकन, लाइक जो ब्लाइंड फेथ वाली हम्म चीज होती है। वेरी ग्लैड, आई वाज लाइक अच्छा मेरे को इंसानों की परख है, शुक्र है। इसलिए जो दो लोग मैंने चुने थे,
मुझे पता था कि कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं हुई होगी मेरे पीछे से, जिससे मेरा ऐसे भरोसा टूट जाएगा या ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो फेक कहा गया, टॉक्सिक कहा गया, सो मेनी अदर थिंग्स। टू बी ऑनेस्ट, वी वर आल्सो वेरी वरीड कि बाहर जाके क्या होगा, इज दिस कि Okay. यहाँ पर हम इस प्रेशर सिचुएशन में हैं एंड हमारा हमारा एक दूसरे के लिए कोई और नहीं है, इसलिए हम इतना क्लोज हो गए हैं। Yeah. अब जाके जब फोन्स मिल जाएंगे, फैमिली आ जाएगी, तब क्या होगा? Hmm. So we've also doubted, like real people, the relationship. Not doubted, but we've been scared of what's gonna happen. Yeah, of course. Uh, Hmm. because you completely change once you go inside the house. It is the format is such. अगर आप देखो, जो मैंने अंदर हरकतें की हैं, गलतियां की हैं, पटक दिया है किसी को उठा के, नॉर्मल लाइफ में Hmm. एक टास्क के लिए मैं पटकूंगा किसी को? Of course. No. Hmm. But that's what happens in that house. So the emotions are Hmm. very high. The emotions are very real. Hmm. So 4 महीने आप फेक नहीं कर सकते. Yeah. So I think whatever the relationship is, it's of a proper balance. There are so many Hmm. things about her that I love. The way she handles me, the way she reacts. Just the thing that how she reached my place at 6 in the morning. Yeah. It says volumes about how much you care about each other. I wanted to not be there because I didn't want to, sort of Hmm. be the center of her attention when the entire world's attention should be on her. So Hmm. our relationship is very, it's cute and childish and mature at the same time. So it's just building up and up and up. Right. Okay, Karan, I also wanted to ask something. I don't know how much it has changed now, but जब उमर घर के बाहर निकले थे, उमर ने कहा था कि वो तेजस्वी से ज्यादा आपसे अटैच है, and then Umar also said that certain things about तेजस्वी, that how she is camera conscious and थोड़ी arrogant आती है. अब जबकि आप तीनों बाहर हैं, have you tried amending things या फिर उन दोनों की situation अपने आप normal हो गई है? No. So I think, see, this is what I'm trying to say. As I said, it's the house that makes you, do. Okay. जैसे मैं बोल रहा हूँ यार, मैं राह चलते उठा के लोगों को पटकूंगा नहीं, वो भी एक टास्क के लिए नहीं. तो दिस इज द काइंड ऑफ प्रेशर, दिस इज द काइंड ऑफ मैडनेस दैट हाउस पुट्स यू इन. वहां पे लोगों ने भिंडियों के ऊपर मुस्कुराए हैं, वहां पे लोगों ने बटर के ऊपर. इट्स नॉट रियल लाइफ. द काइंड ऑफ इमोशंस दैट वी फील इनसाइड, be it anger, be it love, be it friendship, whatever it is, it is all heightened. तो उमर ने बाहर आके, अच्छा, अगर वो मेरे से ज्यादा अटैच्ड है तो वो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो उसमें दैट्स नॉट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेटली, या अदर देन दैट, हम भी अंदर देखो, मैंने रश्मि पे कितना शक किया था अंदर. आने यार, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ये वाइल्ड कार्ड है, ये कुछ ना कुछ करने आए हैं 100%, ये एजेंडा लेके आए हैं, बिकॉज दे आर वाइल्ड कार्ड्स, दे आर अगेंस्ट अस, लाइक हाउ द जंगल पीपल वर अगेंस्ट हाउस पीपल, सो द वाइल्ड कार्ड्स आर अगेंस्ट अस. सो मैंने कहा, ये जब वो राखी ने जाके क्रॉस लगाए थे, मेरा दिमाग देखो कितना खराब हो गया था. मैंने कहा नहीं उमर, मेरी थ्योरी है एंड आई एम प्रोटेक्टिव अबाउट उमर, सो आई विल, सो मेरे को लगता है ये इसने खुद ही किया है तेरा अटेंशन लेने के लिए, क्योंकि मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था फैक्ट कि ये वाइल्ड कार्ड आए हैं, तो ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. एंड आई एम नॉट डाउटेड रश्मि एज अ पर्सन. आई वाज लाइक, ये कंटेस्टेंट है भाई, ये हमसे जीतने आई है, तो फ्रेंडशिप की भाड़ में, लेट्स यूज आवर ब्रेन. सो ऑल ऑफ दीस थिंग्स हैपन, always happen, but once you get out, you go back into your normal life, then you realize, अरे आज मैं realize करूँ, मैं कहा है. And Rashmi is now a true friend. I'm telling you, she's very concerned about me. She's very, she's a beautiful person. So I कितना डाउट किया, किसको डाउट किया? मैंने निशांत को कभी भरोसा नहीं किया. मैं तो हमेशा बोलता था, मैं भाई इस बंदे को भरोसा नहीं कर सकता. हाँ, मेरी जान है, मेरा दोस्त है, मैं खड़ा रहूंगा, पर किसी बात पे भरोसा नहीं करना. So all of these things change. That's a game show. You create, आपके दिमाग में ओपिनियंस होते हैं, जो बाहर जाते हो, आप शो देखते हो, फिर आपको रियलाइज, अच्छा, जैसे प्रतीक ने मुझे बोला कि ये बहुत बहुत मैनिपुलेटिव है, ये लोगों को यूज करते हैं, अब उसको ये दिख रहा है अंदर की मैं लोगों को यूज कर रहा हूँ, तो मैं आई एम वेटिंग. मैंने उसको बोला जाते जाते, मैं कहा सुन, अभी तू जाएगा तो मुझे पता है सारा शो देखेगा, क्योंकि तू इतना दैट एंड हो, एंड देन यू, व्हेनेवर यू आर डन, देन यू कॉल मी एंड टेल मी how much of a manipulator I was and how much I've used people. I really want to know. So this is what I'm saying. And he obviously he'll realize, and hopefully he'll realize, and he'll call me, nahi bhai, ab nahi the. This is what I'm hoping.
Right. Okay. I'll just ask last two question and we'll wind up the interview. Prateek recently actually में event पे आए थे and आपके लिए of course आपका जिक्र तो हुआ था. And Prateek only had good words to say about you. He just said कि जो इतनी मेहनत से यहाँ तक आया है उसके बारे में I can never think of saying any rash or any defaming words. So I believe उनको भी जाके कहीं ना कहीं वो realization हो रहा है कि it was just a game. आप अगर तो अगर आप अगर बताएंगे कि अब अगर आप और प्रतीक मिलेंगे किस तरह से आपकी तरफ से एफर्ट्स रहेंगे या किस तरह का बॉन्ड रहेगा बिकॉज ही हैज ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट यू या इन मेरी भी हर इंटरव्यू में मैंने कौन सा कोई मतलब बैंड बजा दी उसकी कहीं पे सी फॉर मी ही द रिलेशनशिप ऑफ बीइंग अ टफ एल्डर ब्रदर and him being a fighter and me being proud of him was throughout the game. हम कितना लड़ते थे लेकिन अगर पास अच्छा परफॉर्म करता था मैं उसको जाके हक करके बोलता था आई एम प्राउड ऑफ यू और अगर वो कहीं गलत जाने जाता था तो वो होता इतने टाइम ऐसे होते थे कि मैं बहुत इमोशनल होता था और वो अपने स्टाइल में कहीं ना कहीं होता था आसपास अपनी कॉफी पी रहा होता था देख रहा होता था सो आई फील दीज थिंग्स I understand these things. And जाते जाते भी हम लोग जब लास्ट 3 बैचे थे मैं तेजस्वी और प्रतीक तो इट्स नॉट लाइक हम वहां भी खड़े होकर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे देख नहीं रहे थे वी नॉट आई एम सॉरी शायद ये एक्सपेक्टेड होगा बट ऐसा है नहीं वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स and we've spent 17 weeks there now they are family and that will never change for our lives and in fact he knows that I'm here I'm just a phone call away and I will keep an eye on him for sure. राइट ओके आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि एक अभी बिग बॉस रियूनियन हुआ था शमिता के बर्थडे बैश पे एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर सरप्राइज्ड कि आप नहीं थे तेजस्वी तो ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड बट आप नहीं थे बिकॉज यू एंड शमिता शायद वेरी मैच्योर बॉन्ड जितना भी हमने घर में देखा था सो एनीथिंग व्हिच यू वांट टू से बिकॉज वहां पे बहुत लोगों ने अपने रिश्ते भी अमेंड किए थे वेदर इट वाज उमर शमिता या फिर जय और प्रतीक सो वर यू आल्सो सरप्राइज्ड एंड शॉक कि आपकी प्रेजेंस वहां पे नहीं थी और एनीथिंग व्हिच यू वांट टू से ऑन दिस थिंग No, I was not surprised at all. Obviously, see, I was not invited, so and I was not surprised. I knew it, but this is very childish. I think. So अब आप जैसे हो अगर आप वैसे नहीं रहोगे और आप अगर ये सब करोगे तो it's a self-explanatory thing, obviously शूट पे थी वो नहीं आ सकती थी और what have you proved by not calling me? That means that you have kept things. I haven't. I'm sorry. We haven't. Me and Tejasvi haven't kept anything. So yeah, it's not like a surprise. मैं यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं था. Oh my God, आज तो heart attack आ जाएगा. No, chill. I'm very chill in life. वैसे भी I'm like that. Yeah. Okay. And lastly, are there anyone do you want to amend things? जैसे हमने देखा जय और प्रतीक ने चीजें अच्छे से सॉर्ट आउट की इनफैक्ट उमर और शमिता ने भी इज देयर एनी पर्सन कि आप चाहते कि आप बैठे बात करें मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है वो क्लियर हो किसके साथ मैंने किसी के साथ कोई ऐसे पंगे नहीं किए वहां पे ना और देखो मेरा बहुत सिंपल था कि मेरी वाइब है या मेरी वाइब नहीं है ठीक है जिनके साथ मेरी वाइब है उनके साथ मैंने अपनी जान दे दी है जिनके साथ मेरी वाइब नहीं है मैंने उनको इग्नोर किया है और लाइफ में भी मैं वैसा ही हूँ ठीक है मेरी वाइब देखो मेरी दोस्ती बहुत पक्की रही है मेरा प्यार बहुत पक्का रहा है और अगर प्रतीक के साथ मेरी एक राइवलरी रही है तो ही आई हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर हिम अदरवाइज हर किसी को उठा के मैं अपना राइवल नहीं बनाने वाला हूँ तो वो इमोशन भी मेरा रियल है पक्का है यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड अदर्स डोंट मैटर सो मेरे को किसी के साथ पैचअप मैं see it's the vibe if I don't get along with somebody I'm not in your way and not I'm sure that outside also that's going to happen मुझे मेरा किसी के साथ ऐसा कोई पंगा ही नहीं हुआ कि मैं जाके बोलूं कि हाँ यार सॉरी यार खाती पीती माफ कर दो अब आगे से नो I was the same way वो रिलेशन चेंज अगर जो अंदर था वो बाहर भी रहेगा if you don't matter to me you don't matter to me if you matter to me as a friend as a girlfriend as a rival you will continue to matter to me simple right so Karan thank you so much first of all for answering all the question with so much honesty आगे हम करण को क्या देख पाएंगे करण ऑफ कोर्स बिग बॉस अब खत्म हो चुका है प्रोफेशनल फ्रंट पे कहाँ हम आपको क्या प्रोजेक्ट में दिख पाएंगे See again a lot of good things are happening I'd hoped a lot of the perception about me would change people would sort of look at me in a different light the kind of producers the kind of stories the kind of projects that I want to be a part of and it's a good response I'm being very honest
So, professional front, I've always been very, very choosy. I've always been very, I mean, it's out there, I just don't, I do stuff that I like doing. So whenever something happens, something that, matters to me, truly matters to me, and I want to do it from all my heart and not just for the money, I think I'm waiting for that part. So yeah, fingers crossed. Right. And personal front पे क्या बहुत लोगों ने तो predict कर लिया है that you are going to get married soon. Maybe आपके parents का statement या fans का enthusiasm हो. Personal front पे क्या होगा? Are you planning to settle down or just you will go with the flow? To be honest, हमारे parents हमसे पूछ नहीं रहे हैं. They are not asking. Okay. कुछ चल रहा है, and I think let that only happen. To be honest, तेजस्वी के पास भी अभी टाइम नहीं है. वो बेचारी अपने पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं कर पा रही. वो शूट करती है घर आके अपने एंडोर्समेंट्स शूट करती है. She's just extremely busy. So I think whatever is happening is happening in the right direction. And he is working on a very big project right now. It's her dream project. I totally think that she should only focus on that. And she I think हम में से कोई भी तेजस्वी को कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहता है. We want her to be happy. We want her to be happy and bubbly the way she. So yeah, वो हंसती खेलती है, वो important. इतनी important. Okay. So Karan, thank you so much, and I really hope कि professional हो या personal front हो, may you get all the success, peace, happiness which you deserve. Thank you so much for the interview. Thank you so much. Thank you so much. Take care, Karan. Bye. Thank you. Bye. Hi, this is Nikki Tamboli, and you are watching me on Glitz Vision USA. Thank you.